the concept of rhesus isoimmunization very quickly and also very thoroughly. So this is a problem which arises if a mother is Rh negative and her baby is Rh positive. What does Rh negative mean? We know that there is a particular kind of blood grouping which is quite common, known as ABO. So a person has either A blood group, B or O. But we also use positive and negative. A person can be B positive or B negative, and B positive, like the other positives, are considerably more common compared to the negatives. So B negative and O negative or an A negative individual is rhesus negative, meaning they don't have that particular rhesus antigen, but they do have the capability to produce an antibody against it if they're exposed to that particular antigen. Okay? So a person either has a particular antigen or the ability to produce antibodies against it if exposed. That is a general concept. So if a mother is Rh negative and she has a child who is Rh positive because of the father, at an event of feto-maternal blood mixing, the mother will get sensitized and produced antibodies which can potentially cross the placenta, bind to the fetal RBCs, and therefore lead to its extravascular hemolysis. And obviously this is problematic and can lead to fetal anemia, jaundice, etc. etc. So जब भी feto-maternal mixing होती है ना, in an individual who is Rh negative and bearing an Rh positive child, there is sensitization and the production of antibodies. लेकिन जब पहला एक्सपोजर होता है ना, तब जो एंटीबॉडीज़ बनती है ना, वो IgM होती हैं, वो बड़ी, उनका साइज़ बड़ा होता है, वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती हैं. ऑल्सो फर्स्ट एक्सपोजर में कम एंटीबॉडीज़ बनती हैं. तो अगर पहली प्रेगनेंसी है और फर्स्ट टाइम एक्सपोजर हुआ है मदर का टू दी एंटीजन, इतनी एंटीबॉडीज़ नहीं बनेंगी कि वो एक्चुअली हार्म कर सकें बेबी को. लेकिन जब एक बार सेंसिटाइजेशन हो चुकी है, it cannot be reversed, and with each pregnancy it will simply get worse. अगर 1 ml ब्लड के साथ एक्सपोजर हो गया किसी प्रेगनेंसी में या फॉर द फर्स्ट टाइम इन सम एनी अदर वे, 30% सेंसिटाइजेशन हो जाती है. ऑलराइट, सॉरी 15% सेंसिटाइजेशन हो सकती है विद 100% डिनोटिंग कंप्लीट सेंसिटाइजेशन. और अगर 40 ml ब्लड की मिक्सिंग हुई है विद द मैटरनल सर्कुलेशन, यानी इंट्रोडक्शन हुई है 40 ml वर्थ ऑफ एंटीजन की, तो जो अमाउंट ऑफ सेंसिटाइजेशन होती है दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी 30%. And if 250 ml of the blood of the fetus who is Rh positive enters the maternal circulation, then we say 65% sensitization has occurred. ये कुछ interesting points हैं which can come up in MCQs. ठीक है. अब प्रॉब्लम ये कि someone might question कि ये feto maternal mixing की होती है, नॉर्मली ये डिलीवरी के वक्त होती है. ठीक है. और नॉर्मली ये होता है कि there is a woman before she has a first child, even if she is Rh negative, she will not have any antibody because she will not have become exposed to the antigen. ठीक है. एंड उसका फर्स्ट एक्सपोजर कब होगा? या तो डिलीवरी के वक्त होगा, ठीक है, और या मे बी किसी एंटीपार्टम हेमरेज के एपिसोड हो ड्यूरिंग अ फर्स्ट प्रेगनेंसी. ठीक है. एंड वी नो कि एंटीपार्टम हेमरेज नॉर्मली आफ्टर 20 वीक्स होती है ना, थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है. ठीक है. तो ये नॉर्मली इस तरह सेंसिटाइजेशन होती है मैक्सिमम केसेस में एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, और उससे बाद मोस्ट कॉमन टाइम पीरियड डिसेंसिटाइजेशन हो इस द थर्ड ट्राइमेस्टर. फर्स्ट एंड सेकंड में भी हो सकती है बट इट इज़ वेरी अनकॉमन. ठीक है. मसलन के अगर फॉर एग्जांपल कोई एब्डोमिनल ट्रॉमा हुआ हो ड्यूरिंग द सेकंड और फर्स्ट ट्राइमेस्टर विच वाज नॉट इनफ टू इंड्यूस अ मिसकैरेज बट वाज इनफ कि इतनी ब्लीडिंग हो गई थी फीचर्स की कि वो मैटरनल सर्कुलेशन में चली गई और सेंसिटाइजेशन करवा दी. समटाइम्स ऐसा होता है कि फर्स्ट नोन प्रेगनेंसी होती है बट द मदर इज़ ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड. क्यों? Why? Because she might have had a miscarriage which she was unaware of. ठीक है. या maybe she was aware of it but she did not feel that it was necessary to inform the doctor. या maybe कोई previous history हो blood transfusion की, normally तो matching होती है but mistakes have been made in the past. ठीक है. Or maybe she had a molar pregnancy previously and she did not count that as a pregnancy and therefore did not warn you. लेकिन molar pregnancy की evaluation के दौरान भी feto-maternal hemorrhage होती है and sensitization can potentially happen. ठीक है. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं. अब दूसरी बात, जब प्रेगनेंसी होगी तो फिर एट सम पॉइंट फीटो मैटरनल हेमरेज होगा, मे बी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, मे बी ड्यूरिंग एंटीपार्टम हेमरेज, या जब भी. तो फिर से जब री एक्सपोजर होगा ना टू द एंटीजन, द बॉडी ऑफ द मदर इज़ ऑलरेडी एबल टू रिकग्नाइज इट. अब वो जो इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होगी ना वो मच ग्रेटर होगी. ठीक है. एंड अब IgG एंटीबॉडीज़ बनेंगी विच हैव द कैपेबिलिटी टू क्रॉस द प्लेसेंटा एंड द फीटस. तो ये जो RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है ना, इससे मदर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बेबी को होती है. कि बेबी में हेमोलिसिस होता है, बेबी में नीमिया होता है, बेबी में जॉन्डिस की डेवलपमेंट होती है. सो ये बात पता होनी चाहिए कि इनिशियल सेंसिटाइजेशन कब होती है, मैक्सिमम केसेस में एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. उसके बाद कॉमनली ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर विद फर्स्ट बेबी, और फिर फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में. और लेबर के अलावा भी सेंसिटाइजिंग इवेंट्स होते हैं इंक्लूडिंग एब्डोमिनल ट्रॉमा,
लेबर से पहले एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन के दौरान भी ब्लीडिंग हो सकती है, प्रायर मोलर प्रेगनेंसी, प्रायर एक्टोपिक प्रेगनेंसी विच डिड नॉट गो टू टर्म ऑब्वियसली, प्रायर मिसकैरेज, ये तमाम पोटेंशियली सेंसिटाइजिंग इवेंट्स जिसमें फीटस का ब्लड मैटरनल सर्कुलेशन में एंटर हो सकता है, यानी रीसस एंटीजन कैन बी इंट्रोड्यूस टू द मदर्स इम्यून सिस्टम विच कैन प्रॉम्प्टली प्रोड्यूस ऑटो एंटीबॉडीज़। ठीक है, वहाँ समझ आई। इसलिए वेदर फर्स्ट प्रेगनेंसी, सेकेंड प्रेगनेंसी या थर्ड प्रेगनेंसी, जब भी एक वुमेन अपनी फर्स्ट एंटीनेटल एग्ज़ाम के लिए आती है तो उसका सबसे पहले ना ब्लड ग्रुप किया जाता है। इफ़ शी टर्न्स आउट टू बी रीसस नेगेटिव, मतलब अगर फॉर एग्जांपल वही नेगेटिव निकली या बी नेगेटिव निकली, तो फिर उसका ना इनडायरेक्ट कूम्स टेस्ट किया जाता है ये देखने के लिए कि कहीं उसमें ऑटो एंटीबॉडीज़ तो नहीं है अगेंस्ट रीसस एंटीजन, जिनको हम एंटी डी एंटीबॉडीज़ कहती हैं। इफ़ इट इज़ नेगेटिव, it means that although this woman is rhesus negative, she is not sensitized, she has not had any previous sensitizing event। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो सेंसिटाइज नहीं हो सकती। शी कैन, फॉर एग्जांपल अगर कोई हेमरेज हो जाए या एट द वेरी लीस्ट लेबर के वक्त तो हो ही जाएगी। सो इफ वुमन इज़ ICT नेगेटिव वेदर फर्स्ट प्रेगनेंसी है या सेकेंड है, तो हाउ इज़ दैट वुमन ट्रीटेड, लाइक जाहिर सी बात है इट कैन हैपन, तो मंथली ICT किया जाता है इन सच अ वुमन। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि उस टाइम पर उसको एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन जनरली स्पीकिंग लगा दिया जाता है और फिर उसकी ICT मंथली करवाई जाती है। एंड वेदर द ICT एंड इफ़ द ICT रिमेन्स नेगेटिव एंड नॉर्मली डज, तो 28 वीक्स पर फिर से एंटी इंजेक्शन लगाया जाता है। कितना? 300 माइक्रोग्राम इंट्रामस्कुलर। ठीक है, केपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग हाउ मच फीटल ब्लड, अबाउट 30 ml। ठीक है, तो ये होती है रूटीन एंटी प्रोफिलैक्सिस। कोई पूछे कि रूटीन एंटी प्रोफिलैक्सिस किसके लिए होता है? ऐसी वुमेन के लिए जो कि रीसस नेगेटिव है बट हु इज़ नॉट सेंसिटाइज्ड। ठीक है, अगर वो सेंसिटाइज्ड होती भी तो तब भी ये लगना ही था। ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच एवरीवन गेट्स। ठीक है, इंक्लूडिंग दिस वुमन हु इज़ ICT नेगेटिव एंड देयरफॉर नॉट सेंसिटाइज्ड। अब उस वक्त लगा एंटीनेटल एग्ज़ाम के वक्त 28 वीक्स पर, फिर क्यों लगा? बिकॉज मोस्टली सेंसिटाइजेशन डिलीवरी के वक्त होती है, उससे बाद मोस्ट कॉमनली ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर होती है। 28 वीक्स इज थर्ड ट्राइमेस्टर। इस वक्त एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन लगाना इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज़ द टाइम ड्यूरिंग द पार्टम पीरियड, ड्यूरिंग द perinatal, I don't know what it is called anymore, during the period of pregnancy when sensitization is most likely to happen। इसलिए 28 वीक्स में लगाया जाता है और डिलीवरी के बाद भी लगाया जाता है। विदिन 72 hours of delivery the mother should receive another injection of 300 micrograms preferably, but if it is for example neglected, it is not given, तो 28 डेज़ के अंदर भी दे दें तो कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाता है ये, लेकिन ये 72 hours के अंदर देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी हाई यील्ड पॉइंट्स हैं, सारे हाई यील्ड पॉइंट हैं विच मस्ट नॉट बी फॉरगॉटन। अब ये तो एक नॉर्मल सी बात है ना, लेकिन अगर कभी भी ये तो रूटीन है ना, एंटी प्रोफिलैक्सिस एंड डिलीवरी भी आप देते हैं, लेकिन अगर कोई और सेंसिटाइजिंग इवेंट हो ना ड्यूरिंग है प्रेगनेंसी तो तब भी इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, जैसे कि वजाइनल ब्लीडिंग हो जाए, कोई टर्मिनेशन करवानी पड़े, कोई मोलर प्रेगनेंसी हो,